کے باسیوں کے لیے خوشخبری۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر ملتان کی ضلعی عدالتوں میں 6 نئی عدالتیں قائم کر دی گئیں۔ اضافی عدالتوں میں 2 سیشن کورٹس اور 4 سول کورٹس شامل ہیں۔ جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان کی منظوری کے بعد رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ماہر عمران۔ جی بالکل، ملتان کے شہریوں کے لیے ایک اچھی جو خبر ہے وہ سامنے آئی ہے۔ ہائی کورٹ کی جانب سے باقاعدہ طور پر اس کی منظوری بھی دی گئی ہے اور اب ورکنگ بھی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ 6 نئی عدالتیں ضلع ملتان میں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں۔ عدالتوں کی اگر بات کریں تو 17 جو سیشن کورٹس تھیں اور اس کے ساتھ ہی 31 سول کورٹس تھیں پہلے، اب اضافہ ہوا اور 2 سیشن کا اضافہ ہوا اور 4 سول کورٹس کا، اور سمجھا یہی جا رہا ہے کہ اس سے جو ہے ملتان کے باسیوں کے لیے، ملتان کے شہریوں کے لیے جو ہے انصاف مزید اس کو جو تیز ہوگا اور انصاف فراہم کرنے کے لیے جو سورسز بڑھائے گئے ہیں اس سے مزید ان کو جو ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ایڈوکیٹ ہادی علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری بھی ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کے۔ سر بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں پیڈنسی کے حوالے سے اور ان کورٹس کے حوالے سے کتنا فرق پڑے گا؟ بہت زیادہ ارجنسی تھی کیسز کی، اور آپ کو جیسے پتا ہے کہ سسٹم اوور برڈنڈ ہے، اتنا زیادہ اوور برڈنڈ ہے کہ کبھی کبھی ہالٹ ہو جاتا ہے اور کیسز کی جو ہے کئی دفعہ سنوائی ہو ہی نہیں پاتی۔ اس میں جو ہے بیک لاگ کو کم کرنے کے لیے یہ نیڈ آف دی آور تھی کہ نئی کورٹس بنائی جائیں، اس لیے بہت خوش آئند ہے اور ہم سب بہت پر امید ہیں کہ یہ اقدام جو ہے، یہ خوش آئند اقدام بہت ہیلپ کرے گا سسٹم کو دوبارہ سپیڈ اپ کرنے کے لیے۔ جی بالکل، چیف جسٹس محمد قاسم خان کا بھی باقاعدہ طور پر شکریہ ادا کیا جا رہا ہے کیونکہ ملتان 6 نئی عدالتیں ضلع ملتان میں قائم کر دی گئی ہیں۔ ماہر عمران آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محکمہ ماحولیات فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے متحرک بھٹا جات پر ناقص ایندھن استعمال کرنے پر 15 بھٹوں کو نوٹسز جاری۔ محکمہ ماحولیات کا جلد از جلد تمام بھٹا جات کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل کرنے کا حکم۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ظہیر۔ جی، بہاولپور کا محکمہ ماحولیات جو ہے بہاولپور کا ماحول یعنی کہ فضا کو بہتر کرنے کے لیے بہت زیادہ متحرک ہے، اور اس حوالے سے ایک پیش رفت ہوئی ہے۔ وحید مراد لاشاری صاحب ہیں، انسپیکٹر ماحولیات، انہوں نے 15 بھٹا جات کو نوٹس بھیجے ہیں کہ فوری طور پر اپنے بھٹا جات کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ لے آئیں۔ غیر ماحولیاتی آلودگی کو خراب کرنے میں ان کا سبب بن رہے ہیں وہ لوگ۔ نوٹس جاری کیے گئے تو جانتے ہیں وحید مراد لاشاری صاحب سے۔ جی ذرا بتائیے گا کیوں نوٹس جاری کیے گئے ہیں، کتنے بھٹا جات کو جاری کیے گئے؟ ہم نے 15 بھٹا جات کو فی الحال نوٹس جاری کیے ہیں جو سبسٹریٹ آف فیول استعمال کر رہے تھے اور جو ہے نا زگ زیگ ٹیکنالوجی پر جو نہیں لگے ہوئے تھے۔ ہم گورنمنٹ کی یہ ہدایت ہے کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پر ان کو شفٹ کیا جائے کیونکہ اس سے آلودگی کم ہوتی ہے۔ اچھا، آپ نے نوٹس جاری کر دیا ہے، اب آگے کا پروسیس کیا ہوگا؟ اگر وہ زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ نہیں آتے ہیں تو کیا کریں؟ ہم نے ان کو 30 دن کا ٹائم دیا ہے۔ 30 دن گزرنے کے بعد ہم نے ان کو عدالت میں کیس بھیج دینا ہے۔ ماحولیاتی ایکٹ 1997 کے تحت وہ قانون کے خلاف ورزی جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف جو ہے نا مجسٹریٹ صاحب ان کو سزا دیں گے، ان کو جرمانہ کریں گے، ان کو شفٹ کریں گے، ان کو کنورٹ کروائیں گے زگ زیگ ٹیکنالوجی پر۔ جی، ابھی آپ سن رہے تھے وحید مراد لاشاری صاحب کو جو کہ انسپیکٹر ہیں ماحولیات کے، بتا رہے تھے کہ واپس آنا ہوگا۔ 15 بھٹا جات کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ محمود ظہیر آپ تفصیلات بتا رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہاولپور میں سیوریج کے مسائل بڑھنے لگے۔ اندرون شہر کے محلہ احمد نگر میں سیوریج کا بدترین نظام علاقہ مکین گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے۔ گٹروں کا پانی گلیوں اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ گندے پانی کی بدبو سے مکینوں کا گھروں میں بیٹھنا محال۔ اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں محمد امین۔ جی بالکل، بہاولپور میں روزانہ اسپتال روڈ کے بالکل قریب اندرون شہر میں احمد نگر جو ہے یہ مسائل کا اماجگاہ بن چکی ہے اور سیوریج کا خاص طور پر جو نظام ہے وہ بری طرح مفلوج ہو چکا ہے۔ پانی گلیوں سے گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور گھروں کی بنیادیں بیٹھ رہی ہیں۔ سیوریج کا نظام مکمل طور پر مفلوج ہے اور علاقہ مکینوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بات کرتے ہیں علاقہ مکین موجود ہیں کہ کس طرح وہ گھر سے نکل رہے ہیں، کس طرح گھر میں آ رہے ہیں اور کس طرح وہ سارا جو ہے معاملات مینج کر رہے ہیں۔ بتائیے گا کتنی مشکلات ہو رہی ہیں اس پانی کے بعد؟ نماز کے لیے بہت تنگی ہو رہی ہے، ہر آدمی جو ہے کپڑے پلیت ہو رہے ہیں، نماز کیا پڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، سب کے لیے ثواب ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا کام ہے اس کام کو سیدھا کرنے۔ آج کتنے سال ہو گیا پانی اندر گھس رہا ہے۔ اتنی گمبھیر صورتحال ہے، تمام گلیاں جو ہیں وہ پانی سے بھری ہوئی ہیں، سیوریج کا نظام بالکل مفلوج ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ لوگوں نے انتظامیہ سے بات کیوں نہیں کی؟ ہم نے بہت مرتبہ انتظامیہ سے بات کی، ڈی سی او صاحب کو جو ہے ہم نے 2 مرتبہ درخواست دی اور کمشنر صاحب کو بھی، بلدیہ کے محکمے میں جا کر بھی بات کی۔ وہ آتے ہیں، پانی نکال کر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پانی 2 منٹ بعد پھر بھر جاتا ہے۔
ٹوٹل سیوریج کا نظام بیٹھ چکا ہے. ہم اپنے بچوں کو بھی گھر سے باہر نہیں بھیج سکتے. ایک تو کرونا ہے, تو یہ کیا کرونا کے سلسلے میں ہم حفاظتی اقدامات کریں گے اپنے, جو سارا آدھا ہمارے گھٹنے پانی میں بچے گر جاتے ہیں, اوپر سے تارے خراب ہیں, نیچے سے پانی ہے, ہم کہاں جائیں, کس جگہ لے کر جائیں؟ ہم تو بے بس ہو چکے ہیں. شدید مشکلات ہیں اور کوئی صورت سیوریج کے مسائل بڑھنے لگے ہیں, مکین پریشان ہیں. محمد امین آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. آپ کو بتائیں سیوریج کا پانی غربی بائی پاس کے قریب کالونیوں کے لیے درد سر بن گیا. 3 ماہ سے نالیوں کا گندا پانی کھوسا کالونی کے قریب سڑک پر جمع ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں جاوید اقبال. جی بالکل, ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے غربی بائی پاس پر. یہ غربی بائی پاس جو ہے ایک تو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, دوسرا کھوسا کالونی کے نزدیک بالکل روڈ کے اوپر کئی ماہ سے جو ہے یہ پانی جمع ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے. میرا کیمرہ مین آپ کو اگر دکھا سکے تو یہ دیکھ لیں کہ آپ پیچھے سے بالکل پانی, یہ 3 ماہ سے پانی کھڑا ہوا ہے, جس کے لیے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے انتظامیہ کو متعدد بار جو ہے اس حوالے سے آگاہ کیا, مگر کسی قسم کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں علاقہ کے چند لوگ, ہم ان سے بات کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو کن مشکلات کا سامنا, کتنے روز سے یہ پانی جمع ہے, کیا آپ نے انتظامیہ کو اس حوالے سے کوئی آگاہی دی ہے؟ بھائی جان, کوئی دن نہیں جاتا کہ ہم بلدیہ انتظامیہ کو نہ کہیں, ٹھیک ہے نا. یہاں 3 مہینے سے یہ پانی کھڑا ہوا ہے, روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ مین شہر ہے, یہاں سے پاکستان کی ہر ٹریفک گزرتی ہے, اور یہاں پر دونوں طرف کالونی ہے, روڈ کے دونوں طرف کالونی ہے, جس کی 7 سے 8 ہزار آبادی ہے. یہاں سے بھائی جان کوئی بچہ, کوئی بڑا, کوئی بوڑھا, کوئی پیدل گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہے. اتنی مشکل کا سامنا ہے کہ روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی گٹر میں گرا ہوتا ہے, کوئی موٹر سائیکل والا, کوئی ریڑھی والا, کوئی پیدل چلنے والا, کوئی نابینا, کوئی بچہ. بہت مشکل کا سامنا ہے. ہم نے کئی بار انتظامیہ اے سی صاحب کو کہا, کوئی بھی بلدیہ والا یہاں نہ صفائی کرنے آتے ہیں اور نہ ہی اس روڈ کا کوئی جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں. ہماری ریکویسٹ ہے. کئی ماہ سے پانی سڑک پر جمع ہے. جاوید اقبال آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. رخ کریں گے بہاولپور کا, جہاں میٹروپولیٹن کارپوریشن بہاولپور تجاوزات مافیا کے خلاف متحرک. میٹروپولیٹن کارپوریشن عملے کی تجاوزات مافیا کے خلاف کارروائی. تجاوزات کی مد میں الفاروق کیفے جیل روڈ کی بلڈنگ کے کچھ حصے گرا دیے گئے. کیفے نے تجاوزات کی صورت میں سڑک پر سٹینڈ لگائے ہوئے تھے, تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میٹروپولیٹن کارپوریشن بہاولپور تجاوزات مافیا کے خلاف متحرک ہو گئی. خانیوال میں مہنگائی کا جن بے قابو. مرچ کی قیمت 1100 روپے سے 1400 روپے فی کلو ہو گئی. 15 کلو آٹے کا تھیلا 850 روپے میں فروخت ہونے لگا. اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں سے شہری پریشان ہیں. اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں ندیم مغل. شہریوں کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ مشکلات کا اضافہ ہو رہا ہے, چونکہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر بڑھ رہی ہیں. خانیوال میں اگر سرکاری قیمت کے آٹے کی بات کی جائے تو وہ مارکیٹ سے غائب ہے, اور اگر سرخ مرچ کی قیمت کی بات کی جائے تو 1000 روپے سے زائد جو ہے فی کلو سرخ مرچ ہو چکی ہے. جیسے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت مین مارکیٹ میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ کچھ شہری بھی موجود ہیں, ان سے ہم جان لیتے ہیں. جی بتائیے گا کہ اگر آٹے کی بات کریں تو سرکاری قیمت والا آٹا جو ہے وہ مارکیٹ سے کیا مل رہا ہے, اور اگر سرخ مرچ کی قیمت کی بات کریں تو کیا کہیں گے؟ آٹا تو بالکل ہی نایاب ہے جس وقت, اور جو مل رہا ہے اس کا بھی کوالٹی اور معیار بالکل ہی ناقص ہے, اور بیماریاں پھیل رہی ہیں اس سے. حالانکہ ریٹ مناسب ہونا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ اس کی کوالٹی بھی بہتر ہونی چاہیے. رہا مرچوں کا جہاں تک معاملہ, میں حیران ہوں, پوری زندگی میں کبھی اتنی مرچ کا ریٹ نہیں گیا تھا. 1000 روپے سے بھی زیادہ مرچ کا ریٹ سن کے میرے جیسے سفید پوش آدمی کو بھی مرچیں لگ گئی ہیں. اور حکومت کو ایسی عوام سے بچنا چاہیے جو مرچیں لگی ہوئی ہو, تو یقین کرو اگر وہ گلے پڑ گئی تو پھر آپ کے لیے کوئی نجات نہیں ہوگی. جی, حکومت کو بچنا چاہیے اس بات سے کہ مرچ کا ریٹ سن کر عوام کو مرچیں لگ رہی ہیں. اور شہری موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. جی بتائیے گا کہ اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں, خاص طور پہ آٹا کی بات کریں کہ اس کی دستیابی ہے کہ نہیں ہے, مرچ کی قیمت کے حوالے سے بات کریں تو کیا کہیں؟ میں آٹے کے لیے آیا تھا مارکیٹ میں, تو وہی جو گورنمنٹ کے پرائز تھے, تو وہ مجھے دکاندار نے کہا کہ آٹا کی جو گورنمنٹ پرائز والا وہ آپ کو کل ملے گا. تو آج یہ 15 کلو کا آٹا کا گٹو ہے ہمارے پاس, یہ 850 روپے کا ہے. تو میں سن کے کافی پریشان ہوا کہ جو فیسلٹی گورنمنٹ دیتی ہے اس کی مارکیٹ میں نایاب چیز ملتی نہیں ہے. اسی طرح مرچوں کا حال دیکھا میں نے, باقی چیزوں کا حال دیکھا ہے, ریٹ آسمان پہ چڑھے ہوئے ہیں. غریب آدمی کہاں جائے؟ جی, غریب آدمی کہاں جائے؟ مشکلات میں جو ہے عام شہری کے اضافہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اشیاء خورنوش کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے شہری پریشان ہیں. ندیم مغل آپ تفصیلات بتا رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا.
आपको बताएं, हुकूमत का तालीमी इदारे खोलने से पहले असातिज़ा और दीगर स्टाफ के लिए कोरोना टेस्ट करवाने का फैसला। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी तालीमी इदारों को लोगों को कोरोना सैंपल लेने और डाटा एंट्री की तरबियत फराहम करेगी। तफसीलात बता रहे हैं अथल आशारी। जी बिल्कुल ऐसी है कि कोरोना की जो सिचुएशन है उसमें मरीजों में कमी के बाद जो है अब स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का जो प्लान है, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जितने भी टीचर्स होंगे या एकेडमिक स्टाफ होगा उसका कोरोना टेस्ट लाजमी होना है। तो उसके हवाले से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो क्या प्लान कर रही है, कैसे टेस्ट होंगे, कब तक मुकम्मल होंगे, बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्रिवेंटिव प्रोग्राम डॉक्टर जाकिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जाकिर भाई फरमाइएगा क्या प्लान्स बन रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस सिलसिले में कल कैप्टन उस्मान साहब ने मीटिंग ली थी जिसमें दोनों सीईओ मौजूद थे, सीईओ एजुकेशन और सीईओ हेल्थ वाले। तो उसमें जो असाइनमेंट दे दी गई है, तमाम एक्टिविटीज़ जो स्कूल वालों ने करनी है या कॉलेजेस वालों ने करनी है, यूनिवर्सिटी ने करनी है वो अलग से, और जो डीएचए भावलपुर ने करनी है वो अलग से। तो पहले मरहले में तो है ट्रेनिंग कि जितना भी एजुकेशन का मतलब अमला है या फिर यूनिवर्सिटी का या कॉलेजेस का, उनको ट्रेनिंग हमने देनी है। ट्रेनिंग किस सिलसिले में देनी है कि उन्होंने डाटा डैशबोर्ड पे कैसे इंटर करना है, जिनका सैंपल लेंगे, फिर सैंपल कलेक्शन उन्होंने कैसे करनी है और सैंपल की कोल्ड चेन मेंटेन कैसे करनी है, उसको रखना कैसे है और उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। कि वो जैसे एक हासलपुर में सैंपल लिए जा रहे हैं तो वो सैंपल उनका जिम्मे है कि वो डीएचए भावलपुर के ऑफिस में पहुंचाएंगे, उसके बाद हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसको लैब में दे के आएंगे। तो इस सिलसिले में आज हमारी 12 तारीख को ट्रेनिंग है। इसमें यूनिवर्सिटी से भी हमने 2 टीमें ली हैं, हर टीम में 2 बंदे होंगे सैंपल कलेक्शन के लिए और एक लिया हमने डाटा एंट्री वाला। तो इसी तरीके से जो स्कूल से सिटी से हमने 4 टीमें ली हैं जो कि हर टीम में 2 अफराद होंगे, फिर डाटा एंट्री वाले अलग से होंगे, ताकि डेली बेस पे जो डीएचए ने सिर्फ इनको प्रोवाइड करना है अपना वीटीएम। तो ये जो सिलसिला आज ट्रेनिंग का है, 15 तारीख से ये सैंपलिंग शुरू होगी। उसमें भी इन्होंने ये नहीं कि एकदम ही सारे सैंपल लेने हैं, उसमें भी प्रायोरिटी रखी है कि असातिज़ा और दीगर स्टाफ के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे फर्स्ट डे एड के हवाले से। रहीम यार खान में फर्स्ट एड डे के मौके पर रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम टाइगर फोर्स रजाकारों में फर्स्ट एड की तरबियत दी गई है। तफसीलात बता रहे हैं आमिर भट्टी। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में फर्स्ट एड डे के मौके पर रेस्क्यूअर्स की जानिब से टाइगर फोर्स के जो रजाकार होते हैं उन्हें फर्स्ट डे की तरबियत भी दी गई है। इसके साथ साथ जो है आगाही वाक का इनकाद भी किया गया है। स्टेशन कोऑर्डिनेटर शहजादा मोहम्मद इकबाल हमारे से मौजूद है। सर, फर्स्ट एड डे है आज, तो ये बताएगा कि इसकी जो तरबियत है क्या ये हर शहरी को हासिल करनी चाहिए और इसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? जी बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप बता चुके हैं कि फर्स्ट एड डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं कि ये हमने सिर्फ फर्स्ट एड डे नहीं, फर्स्ट एड वीक मनाया है। इसमें हमने पर डे कुछ एक्टिविटीज़ रखी हैं, जिसमें आज टाइगर फोर्स वॉलंटियर्स का था, इसके अलावा सर्ट के कुछ रेस्क्यूअर्स थे, हमने अपने रेस्क्यूअर्स को ट्रेनिंग करवाई है। बेसिक इसका पर्पस यही है कि हम लोगों में शऊर और आगाही पैदा करें कि आपने सेफ ट्रैफिक उसकी पासदारी करनी है, रूल्स को फॉलो करना है, और अगर किसी जगह के ऊपर कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा हो जाता है तो किसी भी प्रोफेशनल हेल्प के पहुंचने से पहले ही आप बेसिक लाइफ सेविंग टेक्निक्स आपको आनी चाहिए, आपको फर्स्ट एड की टेक्निक्स का पता चलना चाहिए ताकि आप उसकी इंटेंसिटी को कम से कम कर सकें। आज भी हमने इनको यही फर्स्ट एड के हवाले से कुछ फर्स्ट एड की टिप्स दिखाई हैं, प्रैक्टिकल सेशन करवाए हैं, ट्रेनिंग और वॉक भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा है। आवाम को सिर्फ यही मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी ना सिर्फ आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है बल्कि आपकी फैमिली और इस कम्युनिटी के लिए, हमारे मुल्क के लिए भी बड़ी कीमती है। अपनी जानों की हिफाजत करें, ट्रैफिक रूल्स की पासदारी करें, फर्स्ट एड की तरबियत हासिल करें और अपने आप को भी बचाएं और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें। फर्स्ट डे के हवाले से रजाकारों में तरबियत दी गई है। बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप रहीम यार खान से तफसीलात बता रहे थे। और वक्त वज़ीर आला पंजाब के शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल। सदर बाजार, पाकिस्तानी चौक, ब्लॉक जे, कादरिया चौक पर कचरे के अंबार लग गए। मेन बाजारों में गंदगी होने के बायस बदबू ताफुन फैलने लगा है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं आशिर अशफाक। जी बिल्कुल, डीजी खान में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तो बन गई लेकिन शहर में सफाई के हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इस टाइम हम मौजूद हैं मेन मार्केट के अंदर, सदर बाजार के अंदर, और इस मेन मार्केट में भी गंदगी के ढेर होने के बायस जो शहरी यहाँ पर आ रहे हैं उनको काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखा सके, ये मेन चौक है, सब्जी मंडी को ये रास्ता जाता है और साथ ही साथ
यहाँ से लोगों का गुजर होता है और यहाँ पर बीचों बीच गंदगी के ढेर होने के बायस शहरियों को परेशानी का सामना है। बदबू और ताफुन ने शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं, जबकि यहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनकी जानिब से ना ही यहाँ पर कोई कूड़ादान रखा गया है और ना ही यहाँ पर कोई इंतजामात सफाई के हवाले से हमें उनकी जानिब से दिखाई दे रहे हैं। शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं गंदगी के बायस। बदबू और ताफुन ने जो लोग यहाँ पर आते हैं, मेन मार्केट है, लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रखा है। शहरियों से जब हमने बात की है तो शहरियों का भी शहर में सफाई की अबतर सूरत हाल है। आशिर अशफाक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं डेरा गाजी खान में सफाई कैसे होगी। सफाई के जिम्मेदार खुद गंदगी का बाइस बनने लगे हैं। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को डीजी खान में सरदार उस्मान बुज़दार जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उनकी खुसूसी हिदायत के बाद बनाया गया था और बनाने का मकसद ये था कि शहर को साफ किया जाए। लेकिन कुछ वीडियोस जो रोही को आज मौसूल हुई हैं, आप भी देख रहे होंगे तो स्क्रीन के ऊपर, किस बेदर्दी से इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट जो कि नामौलूद है, 2 महीने भी नहीं हुए, इमलाक को भी नुकसान कर रहा है उसका अमला, और ख़ास तौर पर शहर के अंदर मानका कैनाल मेन रोड के ऊपर गंदगी भी फैलाई जा रही है। वो इदारा जिसकी जिम्मेदारी है गंदगी साफ करने की, वो शहर को गंदा कर रहा है, तो फिर साफ कौन करेगा। शहरी इस वीडियो के बाद क्या कह रहे हैं? जी, वीडियो आपने देख ली रोही पे, और अब क्या कहते हैं आप? जी, इस पर यह है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने जो है शहर की सफाई सुथराई के लिए जो नई कंपनी बनाई है, तो इसके लिए कि शहर साफ सुथरा दिखाई दे, मगर जो है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये इनको काम करने का कोई सलीका नहीं है। शहर में जगह जगह कूड़े करकट है, ताफून फैल है और ये साफ सुथरा जगहों को भी गंदगी कर रहे हैं। तो हाँ जी, ये नवी कंपनी बनी है। गंदगी जगह पे मेरा बनना है, कंगा रोड में देखो मिट्टी ठेक लग रहा था, सुधार वो गंद पकी पई है सारी, ना कोई बुहारी लेने वाला है, ना कोई मेला वाला है, इसका क्या करूँगा? बिल्कुल जी, आपकी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनी थी, मशीनरी को इस वक्त हमारे पास फुटेजेस हैं, नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सर जी, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, ये हमारे बच्चों का नुकसान है। ये देखिए ये क्या है, ये शहर है, कुछ अल्लाह का नाम माने, कुछ ख्याल करें, कुछ हमारा, हम गरीब आवाम किधर जाए। ठीक है जी, आवाम कह रही है कि कंपनी जो सफाई के लिए बनाई गई थी उसकी कारकर्दगी क्या, और ये सवालिया निशान अब वेस्ट मैनेजमेंट पे उठने शुरू हो गए, क्योंकि 2 महीने वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से शहर में गंदगी फैलाई जा रही है। रोही ने फुटेज हासिल कर ली है। ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डीजी खान में वेस्ट मैनेजमेंट के अमले का गंदगी साफ करने के बजाय गंदगी डालने का मामला। विफाकी वजीर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल का कहना है कि कूड़ा करकट से भरी डस्टबिन को उखाड़कर ट्रॉली में फेंकने वाला सिस्टम अभी इदारे के पास मौजूद नहीं। तफसीलात बता रहे हैं इकबाल सादिक। विफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल साहिबा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये जो कैनाल रोड पर पहले गंदगी को सड़क पर डाला जाता है, घेरा जाता है, उसके बाद फिर उसको ट्रॉली में डाला जाता है, यानी कि इस कदर इतनी ज़्यादा नॉन प्रोफेशनलिज्म है कि खुद जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले हैं, खुद जो सफाई करने वाले हैं, वो खुद ही गंदगी डालने के जिम्मेदार बन रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मैडम, ये वीडियो भी आपने देख ली है, किस कदर ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है, इस पर आप क्या कहेंगी? इससे तो मज़ीद जो माहौल है आलूदा हो रहा है। नहीं, देखिए एक्चुअली इशू ये है कि ये पहली कॉरपोरेशन थी पूरे पंजाब की जिसमें अनफॉर्चुनेटली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था नहीं, और हमारी सबसे पहली कोशिश ये थी कि हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लेकर आएँ। तो सीएम बुज़दार साहब का और हमारी हुकूमत का हमारी डिमांड थी, और मैं तो समझती हूँ उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लेकर आए। अब ये बड़ी न्यूली वो है इस्टेब्लिश्ड एक कंपनी है इसमें डेरा गाजी खान में, अभी तक उनका ट्रांजिशनल पीरियड चल रहा है। तो मैंने जो इसको हेड करते हैं, मैंने भी उनसे ये पूछा है, आपने जो मुझे वीडियो दिखाई है, कि इसकी क्या रीज़न है, क्या हम इसको डायरेक्ट ट्रॉली में नहीं डाल सकते हैं इस गंद को पहले कि हम सड़क पे फैलाएं। उन्हें कहा कि इसके लिए एक प्रॉपर एक मशीन होती है या एक ऐसी गाड़ी होती है जिसको कॉम्पैक्टर कहते हैं, वो प्रॉपर इस तरह टेक्निकली बनी हुई होती है कि वो पूरी की पूरी बिन को पुल करके तो ट्रॉली में डाल देती है। वो कह रहे कि हमने इसकी प्रोसेस कोटेशन भेजी हुई है प्रोक्योर करने के लिए, वो उसमें 1.5 महीना लगेगा। पर अनफॉर्चुनेटली उससे पहले यही एक देसी तरह के कार उनको करना पड़ेगा, क्योंकि जारी बात है जो बिन है वो भी इतनी हैवी लोहे की है, वो भी आम वो इंसान तो नहीं उसको उठा सकते, तो मशीनरी ही उठा सकती हैं।
तो वो चूंकि अभी इसको मुश्किल से ये हम लोगों ने मुहर्रम में इसका सिंपल फॉर्मूला तो ये हो सकता है ना कि साथ आप फिर झाड़ू भी एक आध रखवा लें, एक दो बंदे भी और हों कि जितना जो नीचे बच जाता है उसको झाड़ू से साफ करके फिर आप उसमें डालें, ये तो हो सकता है ना? नहीं, अभी देखिए ना, मैंने तो आपको टेक्निकल रीजन बता दिया कि ये एक प्रॉपर एक मशीन होती है जो पूरी बिन को उठा के कॉम्पैक्टर होता है, उसकी उन्होंने कोटेशन भेजी हुई है, जो वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह 1.5 महीने तक वो आ जाएंगी और फिर ये तरीक़ेकार नहीं होगा कि जो आप कह रहे हैं कि नीचे गंदगी फैलाई जाती है। बाकी जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो तो इंटरनेशनल SOPs पे बनी होती हैं और वो अपना स्टैंडर्ड अब हाई करें, इंशाल्लाह यू विल सी अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट। जी बिल्कुल, तकरीबन 1.5 महीने का टाइम, उसके बाद ये बेहतरी आ जाएगी, फिर इस तरह से ये गंदगी। सरताज गुल का कहना है कि 1.5 माह बाद शहर में सफाई का तरीकाकार तब्दील हो जाएगा। इकबाल सादिक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे मुल्तान से, जहां पे जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में 10 साल से इलेक्शन ना हो सके। 1 साल से सुप्रीम काउंसिल को ट्रेड यूनियन के इख्तियारात मिले हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही जुनेद अनवर। जी जुनेद। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो मुल्तान की बड़ी मार्केट्स हैं जिनके अंदर ग्रीन मार्केट हो, गला मंडी और बाकी मार्केट्स हो, उनके अरसा दराज से जो है वो ताजर तंजीमों की जानब से इलेक्शन मुनक्किद नहीं हो सके, जिसकी वजह से एक बड़ा जो है वो गैप वहां पर मौजूद है, मसाइल भी मौजूद हैं। क्या वजूहात हैं कि इलेक्शन नहीं हो पा रहे? इस वक्त चेयरमैन आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा मोहम्मद शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे ख्वाजा साहब, कैसे देखते हैं इलेक्शन नहीं हो पा रहे, खास तौर पर बड़ी जो मंडियां हैं, जनूबी पंजाब की बड़ी मंडी है गल्ला मंडी, इसका भी इलेक्शन नहीं हो पा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं को गल्ला मंडी स्पेसिफिक नहीं हूं, ओवरऑल बात करूंगा। ये हमारा एक वीक एरिया है जिसको आप एक्सपोज कर रहे हैं और ये सही है, हमारी नाअहली और कोताही है, हमारा मिजाज ही नहीं है एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को मतलब अबाइड बाई करने का। इसकी मेन वजह जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून नहीं है, ये 100% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। आप बार एसोसिएशंस की मिसाल ले लें, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज की मिसाल ले लें, आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की मिसाल ले लें और बहुत सी मिसालें आपके सामने होंगी। ग्रोहबंदी होती है, ग्रुपबंदी होती है, वहाँ पे जो हार गया वो कभी क्लेम नहीं करता मैं डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट हूँ, वो कभी क्लेम नहीं करता कि मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट हूँ। हार गया हार गया। यहाँ पे चूंकि कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, इसलिए जो शख्स जिस वक्त चाहे वो अपनी मार्केट का सदर कहलवाना शुरू कर दे, अपने शहर का चेयरमैन बन जाए, अपने मुल्क का सदर बन जाए। मैं अगर सुबह कर दूं, सुबह लिख दूं कि मैं दुनिया भर के ताजरों का सदर हूं, तो मतलब कि कोई कानून मुझे पूछने के लिए तैयार नहीं है, मुझे रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि 40 लाख कमोबेश ताजर होंगे और उनके साथ कितने लोग वाबस्ता हैं। हम चीख चीख के थक गए हैं हुकूमत पाकिस्तान से, लेकिन जो एम्पायर वाले लोग हैं, फेडरेशन वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये भी सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, ऐसा आइन हो जाए, ऐसा ज़ाब्ता 10 साल से एक ही सुप्रीम काउंसिल को ट्रेड यूनियन के इख्तियारात मिले हुए हैं। जुनेद अनवर आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जर्नल पोस्ट ऑफिस मुल्तान में रिटायर होने वाले 2 पोस्टमैन के लिए अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा रूही अली रियाज। आज GPO मुल्तान के 2 जो डाकी हैं उन्होंने अपने 36 साल की जो सर्विस है मुकम्मल करके रिटायरमेंट पूरी कर ली। तो इस सिलसिले में यहाँ पर GPO मुल्तान में उनकी अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया था और एक रंगारंग तकरीब थी जिसमें न सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पोस्टमैन हैं उनकी कसी तादाद में शिरकत की थी, बल्कि रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी मुल्तान और उसके साथ साथ एडिशनल जनरल एडवोकेट जो थे वो भी यहाँ पर उसमें शिरकत की और CPM साहब यहाँ पर मौजूद थी और काफ़ी इन्होंने इस बात का इजहार किया। और जो हमारे रिटायर होने वाले जो 2 डाकी है जिसमें मोहम्मद इरशाद अहमद और अयूब इकबाल शामिल हैं, उनको तबाही भी दिए गए, तोहफे भी दिए गए, उसके साथ शीट्स भी दिए गए। मुझे तफसीलात जानते मेरे से रिटायर होने वाले जो सर्विस है वो मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे, 36 साल की सर्विस के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, कैसा रहा आपका ये वक्त? बड़े खुश हौसले से सर्विस किया है, हमें अपनी इज्जत मिली है।
बहुत खुश हूँ इसके साथ जा रहा हूँ। काफ़ी खुश हैं अपनी सर्विस के बाद। एक और जो रिटायर हुए डाकिया उनसे पूछूं तो आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे गुजरा आपका सर्विस का सारा वक्त? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जो है ना अच्छे तरीके से सारे साथियों के साथ हमारा जो है ना हो रहा है और काफ़ी काम किया, कई दफ्तरों में किया है। अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से सारा जो है ना वक्त पूरा हुआ है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बखैर आफियत से रिटायर हो रहे हैं। अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। अली रियाज आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर जिला मुल्तान में सफाई मुहिम जारी। इंसदाद डेंगू के पेश नज़र तमाम सरकारी दफातर में खुसूसी सफाई की जा रही है। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर तमाम अफसरान सफाई की मॉनिटरिंग के लिए दफातर में मौजूद। पीरवाला में डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर जमशेद अख्तर ने अपने ऑफिस में खुद झाड़ू लगाकर सफाई मुहिम का आगाज किया। सफाई कंपनी की जानिब से भी शहर में सफाई जारी। तो आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक की हिदायत पर जिला मुल्तान में सफाई मुहिम जारी। इंसदाद डेंगू के पेश नज़र तमाम सरकारी दफातर में खुसूसी सफाई की जा रही है। अभी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, महकमा ज़राअत का कैनोला की काश्त पर सब्सिडी देने का फैसला। महकमा ज़राअत का काश्तकारों को बीज और मशीनरी की मद में सब्सिडी फराहम करने का फैसला। तफसीलात बता रहे हैं अतल आशारी। जी बिल्कुल ऐसे कि भावलपुर में बात करें काश्त के हवाले से तो इस वक्त तो कपास जो है वो सबसे अहम है और साथ साथ कमाद जो है वो भी चल रहा है, लेकिन कैनोला की काश्त जो है वो भी बहुत अहम है। और इस वक्त महकमा ज़राअत तौसी कैनोला की काश्त के हवाले से और ज़मीन की तैयारी के हवाले से क्या एडवाइजरी दे रहा है काश्तकारों को, इसी के ऊपर बात करेंगे। मोहम्मद शफीक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भावलपुर। सर फरमाइएगा कैनोला की क्या सूरत हाल है, किस तरह काश्तकारों को हिदायत दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैनोला एक बहुत ही अहम फसल है जिसका ऑयल हमारा खुर्दनी जो ऑयल है उनमें सबसे अच्छा क्वालिटी का ऑयल है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस कैनोला की प्रमोशन के लिए पिछले तकरीबन 4 सालों से इसमें ज़िम्मेदारों को बीज पे भी इंसेंटिव दे रही है 5,000 रुपया फी एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट एक नेशनल प्रोजेक्ट लेके आई है जिसमें ज़िम्मेदारों को सब्सिडी पे कैनोला की काश्त के लिए, इसकी घाई के लिए मशीनरी दी जाएगी और इसके साथ साथ कैनोला के लिए नुमाइशी प्लाट लगाए जाएंगे। तो मेरे ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश है कि उनके पास जो भी रकबा अवेलेबल है तो वो कैनोला की काश्त के लिए तैयारी शुरू करें और इसका सीज़न जो ही आता है तो इसके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे भी फ़ायदा उठाएं, बीज के इंसेंटिव पे, और कैनोला की काश्त भरपूर और ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पे करें। तो सर इसका सही टाइम बीज और मशीनरी की मद में सब्सिडी फराहम की जाएगी। अथल आशारी आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। भी रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां रहीम यार खान का शहरी अपनी मदद आपके तहत कब्रिस्तानों में पौधे लगा रहा है। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक। माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला करना और मुल्क को सरसब्ज बनाना है तो पौधे लगाने होंगे। पौधे लगाने न सिर्फ फदारों की जिम्मेदारी है बल्कि बहैसियत शहरी हम सब की जिम्मेदारी है। रहीम यार खान में एक शहरी अपनी मदद आपके तहत कब्रिस्तानों में पौधे लगा रहे हैं ताकि कब्रिस्तान के पौधा लगाने की जो सवाब है वो भी हासिल किया जा सके और मौसम की तब्दीली के हवाले से इनसे फ़ायदा भी उठाया जा सके। साजिद फारूक साहब, आप कब्रिस्तानों को ही क्यों फोकस किया और कौन कौन से पौधे लगा रहे हैं? कब्रिस्तानों में हम जी पिलकन लगा रहे हैं, इसके अलावा अर्जुन लगा रहे हैं, नीम है, बकाइन है, गुले महर के पौधे हैं। इसके अलावा फलदार पौधों में जामन और शहतूत वगैरह जो है ये कब्रिस्तानों में हमने परसेंटेज रखी हुई है कि अगर 100 पौधा लगाएंगे तो 10 उसमें फलदार होंगे। और दूसरी वजह कब्रिस्तानों में लगाने की ये है कि दूसरे शहरी इलाके में हमें कोई जगह नहीं मिलती, कोई बल्दिया वाले आके तंग करते हैं या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वहाँ पे केयर करना और उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे ये नेकी भी है और ये कि जगह भी खुली है जहाँ पे हम जितने पौधे लगाएं। इसके अलावा मैंने इधर डिस्ट्रिक्ट जेल में, मेडिकल कॉलेज में, सर्किट हाउस में, गर्ल्स कॉलेज सखर अड्डा में और 23 कब्रिस्तान हमने किए हैं। यहाँ पे हम तकरीबन सिटी के एरिया में 8,000 दरख्त लगा चुके हैं और आउट ऑफ सिटी जो कब्रिस्तानों में लगाए हैं वो भी तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब हैं और जिनमें से तकरीबन 3,3100 के करीब जो है वो मुकम्मल दरख्त बन चुके हैं और बाकी जो है वो भी बन रहे हैं। बिल्कुल, उनकी आबियारी भी की जा रही है, दरख्त भी बन चुके हैं। ये अपनी मदद आपके तहत काम किया जा रहा है, सिर्फ मकसद यही है कि मुल्क को सरसब्ज बनाया जाए। रहीम यार खान के शहरी कब्रिस्तानों में पौधे लगा रहे हैं। ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक आप तफसीलात बता रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।